سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ہمارے بریلوی بھائیوں کا جو مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر کرنے کا، کیا یہ انفرادی ان کا موقف ہے؟ کیا یہ صرف بریلویوں کا اکیلے کا موقف ہے یا تحریک لبیک کا اکیلے کا موقف ہے؟ کیا ہم نے ابن تیمیہ کی کتابیں چھپوا کر لوگوں کو نہیں پڑھائیں؟ من سب نبیا فاقتلوہ اور من سب اصحابی فجلدوہ. کیا یہ ہمارا اجماعی اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ جو نبی کی توہین کرے اس کی سزا شریعت میں یہ ہے، اور جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کو شریعت میں کوڑوں کی سزا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے؟ کیا یہ اکیلا بریلویوں کا موقف ہے؟ کیا اکیلا تحریک لبیک کا موقف ہے؟ میرے بھائیوں، پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ احتجاج کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حکومت کے سامنے بھی مؤدبانہ یہ التجا کی تھی. آپ ہندوستان کے سفیر کو تو ملک سے بدر کر سکتے ہیں، بھارت کے سفیر کو ملک سے کئی مرتبہ ملک بدری کا مراسلہ تھمایا گیا. یہ جو سفیر کو ملک بدر کرنا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر احتجاج کا جمہوری اور مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا تشدد، تعصب، فرقہ واریت نہیں ہے. یہ احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے. آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو ایک مراسلہ تھما دیتے، کون سی قیامت آجت تھی؟ اور پھر مذہب پسندوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ کیا باقی مذہبی جماعتوں نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے، آپ کے دستخط موجود ہے نور اللہ قادری کے اور شیخ رشید کے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے. کیا باقی مولویوں نے معاہدہ کیا؟ کیا میں نے معاہدہ کیا ہے؟ کیا سراج الحق صاحب نے جو معاہدہ کیا ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 20 اپریل تک کا ٹائم دے دیا جائے، ہم اس بارے میں قانون سازی کر کے ایک مراسلہ تھما دیں گے احتجاج کا. آپ نے عہد شکنی بھی کی، وعدہ شکنی بھی کی، اور جب حکومتوں کا زوال شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، کسی ایک واقعے کے اوپر، کسی ایک سانحے کے اوپر افسوس کا اظہار کر دینا اور اسی نوعیت کے دوسرے سانحے کے اوپر خوش ہونا، یہ فرقہ واریت، منافقت اور تعصب کی انتہا ہے. جس طرح 2-3 پولیس والوں کی شہادت پہ ہر دینی طبقے نے ان کی شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح آج پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر اہل سنت کو ذبح کیا گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. وہ لبرل مافیا جو کئی دنوں سے، اور درست کہہ رہی تھی اس وقت کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے، پولیس والوں کو نہیں مارنا چاہیے، آج وہ کہاں ہیں؟ پولیس والوں کے فوتگی کے اوپر تو مذہب پسند اور اسلام پسند آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے. اے پی ایس سانحے پہ مولوی آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے. کوئی فوجی شہید ہو جائے آپ کے ساتھ مل کے اسلام پسند آنسو بہاتے ہیں. لیکن جب کوئی بارش فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش ذبح ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش تشدد کی لہر میں آ کے ہلاک ہو جاتا ہے، تب مولوی بیچارہ اکیلا روتا ہے، تب لاش بھی اکیلے اٹھانی پڑتی ہے، تب جنازہ بھی اکیلے پڑھانا پڑتا ہے، تب زخمیوں کو بھی مسجدوں میں پناہ دینی پڑتی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے. یہ جو ظلم اور بربریت آج ہوئی ہے، صرف اسی کی مذمت نہیں، اس کا آغاز ہر حکومت اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار کے کر دیتی ہے. آپ شاید بھول گئے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، جب مشرف کے جانے کا وقت آیا تھا اس نے کیا بلنڈر مارا تھا؟ لال مسجد کے اوپر شبہون مارا تھا. اس سانحے کی اس وقت بھی مذمت تھی، آج بھی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کو اور اہل حدیث بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس وقت دیوبندی شہید ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی، ان کے ساتھ کھڑے تھے. بعض بریلوی بھائی اس وقت بڑا خوش تھے. اس کے بعد وہی سانحہ، اسی طرز کا سانحہ جب نواز شریف کی حکومت کا اقتدار غروب ہونے والا تھا، جب اس کی حکومت ڈھلنے والی تھی، ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 بے گناہوں کو گولیاں ماری گئیں. اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی. اس وقت بھی مذہبی طبقہ یہ کہتا تھا ظلم ہوا، لیکن تب بھی بعض لوگ کہتے تھے یہ اچھا ہوا. تمہیں چن چن کے الگ الگ کر کے مارا جا رہا ہے، اور ہر دفعہ تم کسی کے موت کے اوپر، شہادتوں کے اوپر، ہلاکتوں کے اوپر تالیاں بجاتے ہو. آج سانحہ لاہور نے لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر دی ہے. جس طرح لال مسجد کے بعد مشرف کا اقتدار نہیں تھا بچا، ماڈل ٹاؤن کے بعد نواز شریف کا اقتدار نہیں تھا بچا، آج سانحہ لاہور سے خان صاحب کو اور شیخ رشید کو عبرت پکڑنی چاہیے. شیخ رشید صاحب آپ وہی ہیں نا جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے، جلاؤ، گراؤ، مار دو، مار ڈالو، میں پارلیمنٹ کو آگ لگا دوں گا. اس لیے آپ کو وزیر داخلہ بنایا گیا تھا کہ آپ لاہور کو آگ لگا دیں. آپ نے کس طرح گولی چلانے کا
का आर्डर दे दिया। अगर मजहब पसंदों ने पुलिस की मौत के ऊपर आपका साथ दिया कि नहीं होना चाहिए, तो क्या आपने ये समझ लिया कि ये नहत्ते अकेले बेचारे मुसलमान हैं, रोजा रखे में इनके ऊपर गोलियों का आर्डर हो जाएगा और आप जी चाहे जिसको मर्जी जबा करते रहेंगे और कोई सदाए इख्तिजाज को बुलंद नहीं करेगा? या तो आप पाकिस्तान के आइन और कानून में आपने ये अल्फाज कहे हैं, वीडियोज मौजूद हैं, आपकी जमात के ऊपर कब पाबंदी लग रही है, आपके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं? और आपके खान साहब ने यह बात भी कही थी, कोई पुलिस वाला अगर मेरे कारकुन को हाथ लगाएगा, रोकेगा, गोली चलाएगा, मैं इमरान खान उसको अपने हाथ से फांसी लगा दूंगा। ये वही खान साहब हैं जो आज मुल्क के वजीर आजम हैं। इनकी पार्टियों के ऊपर कब पाबंदी लगनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। ये फाशिज्म खान साहब, ये फाशिज्म शेख रशीद साहब, आपने हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए। इस कौम को मॉडल टाउन के सानहे के ऊपर आप दिन भर रात एहतजाज करते रहे, सियासत करते रहे। आज कहने में हम हक बजानब है, उस वक्त हम ये समझते थे आप एहतजाज कर रहे हैं और आप इस बात को नापसंद करते हैं कि पुलिस वाले अवाम के ऊपर गोलियां चलाएं। लेकिन आज साबित हो गया आप उस वक्त सियासत कर रहे थे। आपने मॉडल टाउन के 14 कत्लों के ऊपर जितनी सियासत करनी थी कर ली। आज आपने किस असूल के तहत इन नहत्ते मुसलमानों के ऊपर गोली चलाने का आर्डर दिया है, क्यों दिया है? आज मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है कि मुआशरे के अंदर अफहाम व तफहीम की फिजा कैसे परवान चढ़ सकती है। आज मैं अपने अहले हदीस भाइयों को भी कहना चाहता हूं, यह फिरका वरीयत का दौर नहीं है। अल्लाह की कसम, आज उम्मत को इत्तेहाद की इस कदर जरूरत है। आपने गौर नहीं किया, अगर लिबरल मीडिया माफिया चाहे 14 मॉडल टाउन के सानहे के ऊपर 14 कत्लों की लाइव कवरेज करे, उनके एहतजाजों की लाइव कवरेज करे, और आज के सानहे के सारे मीडिया के ऊपर ब्लैक आउट हो, क्यों ब्लैक आउट हो रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसका मतलब है मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता है। मीडिया भी सिर्फ तब भी हक की आवाज उठाता है जब उसके अपने मफादात हो। इसकी मिसाल मॉडल टाउन के सानहे के अलावा एक और भी है, और मैं बात ढके छुपे अल्फाज में कहना चाहता हूं ताकि फिरका वरीयत को मुल्क में हवा न दी जाए। हजारा वाले अगर बेगुनाह शहीद हो, मीडिया उनको प्रोपोगेट तो करे और हुकूमत के ऊपर दबाव डाले। कभी फलां वजीर जा रहा मुज़ाकरात करने, कभी फलां वजीर जा रहा मुज़ाकरात करने, हत्ता कि इतना दबाव डाला गया कि खान साहब आप खुद जाइए, आप खुद जाइए। जब तक आप नहीं जाएंगे ये धरना खत्म नहीं होगा। खान साहब को भी जाना पड़ गया, खान साहब को भी जाना पड़ गया। तो अगर हजारा वाले के लिए जाना चाहिए, इतराज हमें नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं तसादुम होना चाहिए, लेकिन अगर हजारा वालों के लिए खान साहब जा सकते हैं तो इस धरने के ऊपर जो मुल्तान रोड के ऊपर जारी था, इसको खत्म करने के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते? इसको खत्म करने के लिए वजीर नहीं जा सकते? ये कैसी दोगली पॉलिसी है और कैसी मुनाफिकाना रविश है कि एक धरने को मुज़ाकरात से खत्म किया जाएगा और दूसरे धरने के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। या तो मुल्क के आईन में यह लिख दिया जाए कि किसी को इख्तिजाज की इजाजत नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, गिलाओ जराओ के एहतजाज के ना हम कायल हैं, ना हम गोली के कायल हैं, ना हम लाठी के कायल हैं। लेकिन एक धरना जो कई दिन से वहां पे बैठा हुआ है, आज उसके ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई? हमने उस वक्त तो आपका साथ दिया था कि जब पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, हमारे फौजी भाई भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो इसी मुआशरे से हमारे बहन भाइयों, हमारे रिश्तेदारों में से इदारों में गए हुए हैं। पुलिस में भी हमारे बहन भाई गए हुए हैं, इसी मुआशरे के हिस्सा है। ये किसने आपको पट्टी पढ़ाई कि मुआशरे के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के सामने ला खड़ा किया जाए? एक दूसरे के ऊपर गोलियां चल रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो नौजवान जो इस वक्त भी फिरका वरीयत की सोच सोच के शुक्र कर रहे हैं, ठीक है यार बरेलवियों को मार पड़ी है, हमें क्या लगे? ये दुख और अफसोस की सोच है। ये किसने कह दिया कि अगर कोई बरेलवियों को मारेगा तो इस्लाम पसंद उसके लिए सदाए इख्तिजाज बुलंद नहीं करेंगे? ये आपकी गलत फहमी है। इत्तेहाद सलासा, इत्तेहाद मसलक सलासा इस मुल्क में कायम हो चुका है इस वजह से कि हमने अपनी आंखों से इस मुल्क के अंदर सहाबा की तौहीन होते देखी, किसी के सर पे जू ना रेंगी। तो वक्त ने इस बात का तकादा किया कि ये तीनों मसालक मिलके अब दिफाए सहाबा के झंडे को उठाएंगे, और दिफाए सहाबा का झंडा उठाया तीनों मसालक ने मिलके। इसी तरह आज वक्त की जरूरत है कि हुर्मत रसूल के लिए भी तीनों मसालक एक हो जाएं, एक हो जाएं। मुझे बताइए, ये मुआहिदा अगर हुकूमत ने पूरा नहीं था करना, किया क्यों था? वादा खिलाफी की किसने है? अहद शिकनी की किसने है? और कम अज कम
उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, हक का साथ तो दे दो। अगर साथ खड़े नहीं हो सकते, जुबान से तो हक अदा कर दो, और अगर जुबान से भी नहीं कर सकते तो दिल में तो जालिम की मुजम्मत करो, मजलूम का साथ दो। तुम कहते हो नहीं, अच्छा हो गया 50 जिनके मर गए वो जालिम है, जिनके 50 शहीद हो गए, बच्चे 14-14 साल के, 15-15 साल के, 16-16 साल के, सीधी गोलियां चला दी। अभी तक जो इतलात है वैसे ही ब्लैक आउट है, जो मुसद्दका इतलात है, 50 से ज्यादा लोग हैं जिनको गोलियां लगी, उनमें से कई शहीद हो चुके हैं। बताइए, एक दूसरे को शहीद करने के लिए ये पुलिस बनी है, एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए पुलिस बनी है। होना यह चाहिए इस वक्त में तमाम मजहबी क़यादत सामने आए, और मैं सिराजुल हक साहब को भी हिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने अर्जेंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल मंसूरा में बुला ली है, लेकिन क्या हर सानिया हो जाने के बाद ऑल पार्टीज हुआ करेगी? लाल मस्जिद के बाद ऑल पार्टीज हुई, 14 कत्लों के बाद ऑल पार्टीज हुई, आज सानिया लाहौर के बाद ऑल पार्टीज हो रही है। ये अमन की कोशिशें पहले क्यों नहीं हुई? ये मुज़ाकरात की कोशिशें पहले क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के तीनों मसालिक, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, उनको चाहिए सफेद झंडे लहरा के सहाबा का वो किरदार अदा करें। अगर मुसलमानों के दो गिरोहों में टकराव हो जाए तो सुलह की कोशिशें होनी चाहिए, इत्तेहाद की कोशिशें होनी चाहिए, अमन का माहौल कायम करना चाहिए। आज हम सीरत नबी भी भूल गए और साहब रसूल का सारा उसवा भी भूल गए। किस वजह से? हमें फ्रांस का सफीर इतना अजीज है कि उसको सिर्फ एक खत पकड़ाने से इनकार करने के ऊपर अपने मुल्क के 50 मुसलमानों को शहीद कर दिया जाए। वो कहां है लिबरल माफिया जो 3 दिन पहले हर वक्त मीडिया के ऊपर कह रहा था ये पुलिस वालों का क्या कसूर है, इन 50 बच्चों का क्या कसूर है? बताएं, हमें भी जवाब दें, क्या कसूर है, क्या कसूर है, किस वजह मारे गए? इस वजह से कि आपको आपका अहद याद करा रहे हैं, वादा याद करा रहे हैं। मैं गोली लाठी की किसी किस्म की चाहे अवाम उठाए उसके भी खिलाफ है, और अगर पुलिस उठाए उसके भी खिलाफ है। क्यों उठाए? या तो फिर ये कुलिया सियासी पार्टियों के ऊपर लगा दिया जाए। आप भूल गए परवेज मुशर्रफ ने कराची में उतर के क्या कहा था? मुक्के लहरा के कुव्वत और ताकत का मुजाहरा, 40 बंदे मार दिए, उस पर पाबंदी लगी। MQM को 30 साल हो गए हर रोज कराची में 40 बंदों को कत्ल करते हुए। आप वो सानिया बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया भूल गए हैं? बत्ता न देने के ऊपर 250 अफराद को जिंदा जला दिया गया, उस वक्त उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई। ये दोगलापन है, ये मुनाफकत है। आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम फिर कहते हैं तो हमारे ऊपर ब्लेम आ जाता है। ये मौलवी देखे, मौलवी इंतहा पसंदी फैलाता है। मैंने मुआहिदा किया है, मैं इंतहा पसंदी फैलाता हूं। मुआहिदा करने वाला तो नूरुल हक कादरी और शेख रशीद है, और शेख रशीद तो सिपाही हतमे नबूवत है। मुआहिदा भी किया और मुआहिदे से मुकर भी गया और पाबंदियां भी लगा रहा है। इस तरह हुकूमत बच जाएगी? इस तरह इक्तदार को तूल दे दिया जाएगा? क्या ये इक्तदार बच जाएगा? ये गिरती हुई दीवार होती है। ये हर हुक्मरान जाते जाते एक ऐसा ब्लंडर जरूर मारता है कि जिसके बाद ये मोहर लग जाती है कि इसके जाने का वक्त आ चुका है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मौजूद सामीने गिरामी कदर, आप सबके सामने सिर्फ यही बातें रखनी थी, और आपका भी ये जिम्मा है आप फिरका वरीयत के माहौल को न्यूट्रलाइज करें, और आप इस तशद्दुद के माहौल को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें, और आप नफरत को खत्म करें। मुआशरे के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है। मैं आपको सिद्ध के दिल से ये बात बता रहा हूं कि नफरत का बीज बोया जा रहा है, और बड़ी तेजी से बोया जा रहा है कि शायद आपस में टकरा जाएं। इंशाअल्लाह इस्लाम पसंद और मजहबी जमातें एक दूसरे के साथ मिलके इनको आपस में टकराने भी नहीं देंगे। अगर हम जुल्म नहीं करने देंगे तो इनके ऊपर जुल्म होने भी नहीं देंगे। कोई ये ना समझे कि ये बरेलवी हैं तो तनहा रह गए हैं। पाकिस्तान के तमाम मजहबी रहनुमा आज इनके शाना बशाना खड़े हैं और इनके ऊपर होने वाले जुल्म की मजम्मत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। तेरे प्यार का तशक्कुर भला फिर भी कब अदा हो, यही बस मेरी दुआ हो कि हो सहर या मसा हो। मैं सलाम तुझ पे भेजूं, मैं दरूद पढ़ता जाऊं। मैं सलाम तुझ पे भेजूं, मैं दरूद पढ़ता जाऊं। सलाम तुझ पे भेजूं, मैं दुरूद पढ़ता जाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।